Good morning students. I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is electricity and circuits. This chapter is in physics. Now today in this video, we are going to do one exciting thing that is model making. So in this video, I will going to show you and explain you how to make a model. Okay, so that you can easily able to understand all the electric components. Okay, so are you ready? Feel exciting? Let's get started. Before that, first let me explain you all the portion that we understood in the last video lecture. So in the last video lecture, we have completed electric bulb, then electric circuit. What are electric circuit? Electric circuit means the complete path for the flow of electric current is known as electric circuit. Now this electric circuit is completely related with the electric current. Okay. So what is electric current? So it is a form of energy called as electrical energy which makes the bulb to glow. But for the electric current you must have a complete path. And for the complete path for the flowing of electric current is known as electric circuit. So electric circuit is basically having two types, that is open circuit and closed circuit. Open circuit means a circuit uh, which has not complete path, or should I say which is break. The path is broken. Okay, so that kind of circuit is considered as a open circuit. Now this open circuit means it is a condition like the bridge is been broken between the two cities which is connected with the bridges. ओके जैसे कि भरूच एंड अंकलेश्वर है, ये दोनों ब्रिज से कनेक्ट होते हैं. ड्यू टू द ब्रिज द ट्रांसपोर्टेशन कैन बी पॉसिबल. But suppose if this bridge, if all these three bridges are broken, okay, so what will happen that the transportation between Bharuch and Ankleshwar cannot be possible. Okay, so same way over here, if the path of electric current is incomplete or break, then it is considered as an open circuit and current cannot flow through open circuit because the path is not complete. Okay, so and also I have written one thing that open circuit is considered as a switch off condition. Now what is this switch off condition that I will going to explain you today in this video. Then after we understood about closed circuit. What is closed circuit? Closed circuit means a circuit which is having complete path for the flowing of electric current. Means it is like a condition that all three bridges are present between Bharuch and Ankleshwar so that the transportation can be go smoothly. Okay, so such condition is considered as a closed circuit. Now as the path is complete, so current can easily able to flow from positive terminal to negative terminal. Clear? Okay, and this condition is also similar as a switch on condition. Are you getting? So these things we have completed in the last video lecture. Then after we understood all the open circuit and closed circuit via activity, okay, we have connected this electric cell and electric bulb in a different way so that we can easily able to identify that whether the circuit is considered as an open circuit or not. Clear? So today in this video, I will tell you one thing that what will happen if you just connected this bulb directly with electric cell in a proper manner, means positive terminal, the complete path is there between the electric cell and electric bulb. Okay, so what will happen, the bulb will continuously glow on and on, and due to that reason at one time inside the electric cell what will happen that the chemical reaction between the two chemicals, that is rod and the paste which is inside the electric cell, both chemical reaction will be vanish or finished. Then after, is there any conversion of chemical energy into electrical energy? No. So will your or does your bulb glow at that time? No. Okay,
So this thing you must have to keep in mind that all the time we हमारे घर में भी even हम लोग पूरे दिन हमारे घर के अंदर लाइट है वो ऑन करके, बल्ब है वो ऑन करके नहीं रखते हैं. हम कब उसको ऑन करते हैं? Exactly in the evening time or at the night time. Why so? Because at that time the room is completely dark. So for obtaining the light we are switch on the bulb and getting light. Okay, but in the daytime why we do not switch on the bulb? Because at the daytime the sunlight is enough for us to work inside our home. Yes or no? Okay, so you see over here that suppose if the device is directly connected with the main supply, then what will happen? That remaining electric components or remaining electric devices will switch on and on. So due to that reason what will happen, अगर वो dry cell के साथ connected है कोई भी electrical component, so might be possible that the chemical reaction which happens inside the dry cell will get finished at one time and your respected component will not work anymore. And suppose if the device is attached with the main supply, electric device is attached with the main supply. So what will happen? That remaining device will continuously get on and on. Due to that reason, excessive heat can also produce. Secondly, that आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? Yes or no? Okay. So you observe one thing that we cannot directly connected any electric component with electric source. So what is the solution? The solution is nothing but an electric switch. Now what is an electric switch? Okay, you know what is electric switch at your home. Okay, for switch on or switch off any electrical appliance, you are using electric switch. Now what is switch? Switch का मतलब क्या होता है? मैं किसी के मैं मैथ्स साइंस की जगह पे मैथ्स पे स्विच हो रही हूँ. मतलब क्या? I will just keep the science aside and start learning maths. I'm switching to maths. I'm switching to science. Okay, so you are saying that changing. Okay, some kind of change is going on. So that is considered as a switch. So over here in this chapter, what is the meaning of electric switch? So electric switch means a device which complete or break the circuit. This is called electric circuit. मीन्स इलेक्ट्रिक स्विच का काम है जब मन मर्जी आए, जब जरूरत हो तब आपके डिवाइस को वो ऑन करेगा. जब आपको वो चीज की जरूरत नहीं है एट दैट टाइम वो आपके डिवाइस को क्या करेगा? बंद कर देगा. राइट और नॉट? ओके, सो ड्यू टू दैट रीजन व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी? अगर आपने अपनी छोटी सी जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बनाई है, अगर उसके अंदर स्विच है तो आप उसको एज पर द रिक्वायरमेंट उसको यूटिलाइज कर सकते हो. पहला फायदा. दूसरा फायदा कि स्विच ऑन एंड ऑफ करने की वजह से एक्सेसिव ड्राई सेल का यूजेज नहीं होगा. मतलब कि समटाइम्स ऐसा जरूरी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि नेसेसरी के बगैर भी अगर आप उसको डायरेक्टली कनेक्टेड रखते हो तो एट वन टाइम द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ड्राई सेल गेट फिनिश. सो ये चीज इलेक्ट्रिक स्विच की वजह से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी. ओके, सो आपका जो ड्राई सेल के अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है वो भी सेव होगा. और इनडायरेक्टली आई कैन स्पीक दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज है वो सेव होगा और एक्सेसिव उसका जो लॉस हो रहा था वो नहीं होगा. क्लियर? ओके, एंड third thing, that sometimes it happens that continue the glowing of bulb can cause the condition named as fused bulb. अगर आप continuously bulb को on करे ही रखते हो, so possibility है कि bulb के अंदर सिर्फ light energy नहीं मिलती है, bulb के अंदर loss के तौर पर some sort of heat energy भी produce होती है. So this heat energy can cause the filament to break. So such kind of bulb is known as fused bulb. So फिर आपका bulb क्या glow होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because path है वो टूट चुका है. Okay, fused bulb है वो कैसी condition होती है? That is open circuit condition होती है. complete current को flow होने के लिए path complete नहीं होता है. So that's why your bulb will not glow. So ये तीन चीजों
का आपको एक एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ द स्विच कि you can use your electrical appliances as per your requirement so that it is bit convenient also as well as it is eco friendly or should I say electricity saving हो सकता है इसकी वजह से. Clear? Now as you can see inside the diagram, this is a button. Okay, on it is written 0 and 1. 0 stands for switch off condition. Okay, and this one is considered as a switch on condition. So if you push the switch over here towards the 0, अगर 0 की तरफ आप उसको push करते हो तो वो switch off हो जाती है. and अगर आप एक 1 जो लिखा है उसके ऊपर अगर आप पुश करते हो तो रिस्पेक्टेड डिवाइस क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है. यू नो हाउ टू यूज स्विच. नाउ ओवर हियर यू कैन सी 2 clips are present which is having small holes inside it. So जब आप स्विच बोर्ड को जब ओपन करते हो, जब भी कभी कोई भी जरूरत हो और आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन काम करने के लिए आता है और अगर वो स्विच बोर्ड को पूरा स्क्रू ड्राइवर से निकाल के बाहर, so over there you can observe this thing. ये पोर्शन है ये बाहर की तरफ रहता है जिसका आप यूजेज करते हो और ये पोर्शन है वो स्विच बोर्ड के अंदर रहता है क्योंकि ये दोनों क्लिप्स है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, वायरिंग के साथ, आपके रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ अटैच होती है. ओके, सो इसलिए ये अंदर की तरफ होती है. अब ये वाली चीज प्लास्टिक की है, ये वाली चीज मेटल की है. अब ये क्यों होता है, दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. क्लियर? बट अप टिल नाउ मैंने जैसे बोला इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इलेक्ट्रिक बल्ब के कितने टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज 2. ओके, बट उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि विच वन विल एक्ट एज पॉजिटिव एंड विच विल एक्ट एज अ नेगेटिव. वैसे ही स्विच में भी कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स. अब ये टर्मिनल चीज क्या होती है, सो टर्मिनल मीन्स इट इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए पूरा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऐसा पूरा एक कंप्लीट पाथ होना जरूरी है. अगर रिस्पेक्टेड अप्लायंसेस के अंदर सिर्फ एक ही टर्मिनल होता तो आपकी सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती. So due to that reason, हर एक डिवाइस के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं, that is 2. 2 terminals are present. Clear? Okay. And one more thing. Over here in the topic it is written the 2 terminals of cell should never be joined without connecting them through switches. मतलब वो हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टली अगर सेल और बल्ब को अटैच करोगे, so what will happen? At one time the chemical substances reaction will get vanished and the respected device cannot able to work. So remember this thing. Now I am going to move for the next thing that I promised you that today in this video you have to make a model. So let me explain you how will you make a model. For that you do not have to go for stationery and buy things. Everything is available at your home only. Okay. First thing, what are the things that you required for this activity? That are paper clip. सेफ्टी पिन भी ले सकते हो. पेपर क्लिप मतलब जो यू पिन आती है. ओके, सो वो यू पिन भी ले सकते हो या सेफ्टी पिन भी ले सकते हो. सेकेंड थिंग, ड्रॉइंग पिन्स आर प्रेजेंट विच इज इनसाइड द डायग्राम. सो दिस ड्रॉइंग पिन्स आर नथिंग बट द थंब पिन्स, जो हम लोग हमारे स्कूल के लिए बुलेटिन बोर्ड के लिए जो पिन्स यूज करते हैं उसकी बात करें. So how many pins you have to take? That is 2. 2 drawing pins you have to take. 1 paper clip or means U pin or safety pin you can take. Now next thing is electric wires. Wires सबके घर पे present होते ही है. If it is not, then you can ask to your parents, they will going to provide you. Okay? मतलब बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है. हार्डली 5 सेंटीमीटर्स के 4 इनफ होते हैं. ओके, ज्यादा नहीं लेना है. सो दीज आर द इलेक्ट्रिकल वायर्स. नेक्स्ट थिंग इज थर्मोकोल शीट. आपने स्कूल्स में इतने सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीजें की है. सो उसके अंदर से थोड़ा बहुत कोई भी यूज्ड थर्मोकोल हो उसमें से छोटा सा 5x5 का या 10x10 सेंटीमीटर का, अगर आप 10 सेंटीमीटर लेंथ 10 सेंटीमीटर ब्रेथ का छोटा सा स्क्वायर भी आप कट कर सकते हो. ओके, यू हैव टू कट इट एंड
put the drawing pins like in a manner which is shown inside the diagram. So pehle let me tell you what are the things you require, then I will explain you what you have, how to arrange the circuit. So I explained you about drawing pins, paper clips, wires and thermocol sheet. Now you have to take a small bulb. स्मॉल बल्ब मतलब टॉर्च के अंदर जो बल्ब आता है वो छोटा सा बल्ब आपको लेना है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक सोर्स. सो उसके लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक सेल. ओके 10 रुपीज का आता है बट आपके घर पे ऑलरेडी होगा ही. सो सारी चीजें घर के अंदर है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू हैव टू अरेंज द सिंक. सबसे पहले हम लोग स्विच को पहले बनाएंगे, उसके बाद बाकी के सर्किट्स को अरेंज करेंगे. सो स्विच बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक स्मॉल थर्मोकॉल शीट. ओके वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत बड़ी शीट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू टेक 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ, और थोड़ा बड़ा बनाना हो तो 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ. ओके क्योंकि उसके ऊपर कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये पिंस को फिक्स करना है. सो इसके लिए इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ थर्मोकोल की जरूरत नहीं है. 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ इज इनफ. ओके नाउ इफ यू हैव कट इट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिक्स द बुलेटिन बोर्ड पिन ओवर हियर. ओके आपको इसके अंदर दोनों बुलेटिन बोर्ड पिन को यहाँ पे आपको फिक्स कर देना है. once you have fixed, now what you have to do, you have to take one safety pin. ओके अब सेफ्टी पिन को आपको कैसे अरेंज करना है. सबसे पहले इंसर्ट अ ड्राइंग पिन एट वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप. मतलब कि इन दोनों में से सपोज यहाँ पे ओके ये थंब पिन को थर्मोकोल के अंदर डालने से पहले आपको पता है कि वो सेफ्टी पिन के अंदर छोटा सा होल आता है नीचे की तरफ. उसके अंदर आपको ड्राइंग पिन को फंसा के फिर इसके अंदर आपको डिग करना है. ओके लाइक दिस आपको उसके अंदर फिक्स करना है. ओके सो सेफ्टी पिन अटैच हो गई. और दूसरी पिन है ये वाली पिन है. ओके उसका जो शार्प पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, वायर लेना है. वायर के दोनों साइड का प्लास्टिक कवरिंग निकाल दो, फिर उसको घुमाओ एंड उसको वाइंड अप कर दो सराउंड द थंब पिन. ओके थंब पिन का जो पॉइंटेड एरिया होता है वहां पे आप उसको वाइंड अप कर दो ताकि एक वायर है वो उसके साथ अटैच हो जाए. सेम थिंग यू हैव टू डू ओवर दिस साइड ऑल्सो. सो दिस साइड आपको इलेक्ट्रिकल वायर वाइंड करना है एंड सेफ्टी पिन दोनों को वो पॉइंटेड एंड के साथ अटैच करके थर्मोकोल शीट के अंदर फिक्स करना है. सो योर इलेक्ट्रिक स्विच इज नाउ रेडी. ओके अब ये जो एंड है, ये पेपर क्लिप का एंड है, वो मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस थंब पिन. ऊपर नीचे मीन्स इट विल मूव लाइक इन अ मैनर. ऐसे भी होगा और इसके साथ अटैच भी होगा, ऐसे भी होगा और इसके साथ अटैच भी होगा. क्लियर? सो योर इलेक्ट्रिक स्विच इज कंप्लीट. नाउ ये जो दोनों टर्मिनल्स के वायर्स है इनको हम अब अटैच करना शुरू करेंगे. सो वी आर अटैचिंग दिस साइड with electric bulbs one of the terminal. ओके मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का एक टर्मिनल कहाँ जाएगा, यहाँ पे स्विच के साथ, और इलेक्ट्रिक बल्ब का दूसरा टर्मिनल जो यहाँ पर नीचे होता है वो किसके ऊपर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. अब बचा सिर्फ एक ही एंड, दैट इज द स्विच एंड द इलेक्ट्रिक सेल. सो इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ अटैच होगा, स्विच के ये वाले टर्मिनल से. So you see that a complete path is present. एक सर्कुलर बन रहा है देखो, starting from positive terminal to bulb का दूसरा टर्मिनल स्विच के साथ, स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वो बल्ब के साथ. So like this way your circuit is complete. Now what you have to do, आपको पहले पेपर क्लिप को या सेफ्टी पिन को ऐसे रखना है, इसके साथ अटैच मतलब ज्वाइंट नहीं करवा देना. At that time you observe will your bulb glow or not. Once it is done, then आपको क्या करना है, ये पिन को नीचे की तरफ मतलब इसके साथ आप अटैच कर देना है. So at that time your bulb will glow or not, that you have to do. Clear? Okay. Once your this activity has been completed, आपका मॉडल एक बार अच्छे से बन जाए, so what you have to do, आपको एक छोटा सा 10 सेकेंड का वीडियो बना के
आपको ग्रुप के अंदर डालना है। ओके, जिसने भी अच्छा बनाया हुआ होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्प्ले करूंगी, या फिर एक स्पेशल छोटा सा वीडियो बना के जिन जिन लोगों ने मॉडल्स बनाए हुए होंगे उनका नाम मैं डिस्प्ले करूंगी। क्लियर? Okay, so I hope you will going to enjoy this activity. By this you can easily able to understand what is open circuit, what is closed circuit, how does bulb glow, okay, why the bulb glows, how the electric cell work, okay, this thing, and what is an electric switch and what is its function. So एक छोटा सा मॉडल है, उससे आपको एक पूरा चैप्टर अच्छे से दिमाग में आ जाएगा. Okay, so I hope you get it. Now moving to the next, that how to arrange the electric cell into an electric torch. ओके, आपकी इलेक्ट्रिक टॉर्च को जब आप अंदर से देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है. So this is a glass over here, okay, and over here this portion is there, which is, let me show you with highlighter. So this portion is a glass. अब ये अंदर का एक पोर्शन होता है ये जिसके साथ बल्ब अटैच होता है, सो इसको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं. रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि आपकी जो भी लाइट है उसको बहुत ज्यादा बाउंस बैक, हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, टू बाउंस बैक द लाइट. सो रिफ्लेक्टर का काम क्या है कि बल्ब से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको और ज्यादा फैलाने का, स्प्रेड करने का, बाउंस बैक करने का काम रिफ्लेक्टर करता है. दिस इज द बल्ब. ये बल्ब के दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा. ओके, सो बल्ब का एक टर्मिनल किसके साथ अटैच है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. ओके, एंड पॉजिटिव नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक सेल और ये पॉजिटिव नेगेटिव. सी यू कैन सी द सेल अरेंजमेंट आर इन अ अपोजिट टर्मिनल मैनर. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, ऐसे भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है. ओके, नाउ बल्ब का दूसरा टर्मिनल, बल्ब का दूसरा टर्मिनल है वो स्विच के एक एंड के साथ कनेक्टेड है, ये रही स्विच. ओके, और स्विच का जो दूसरा एंड है वो इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है. सो यू सी ओवर हियर दैट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू बल्ब to switch to once again electric cell. So like this way the path is complete. And if you switch on, the path gets complete and your torch gets open. Torch gets on. And suppose if you switch off, so the path is not complete, act as an open circuit and the torch will switch off. So like this way, the cell arrangement is there and we understood the working of electric torch. Okay, इसके diagram की drawing practice आपकी होनी चाहिए, because in exam usually this labeling or drawing can be asked. Okay, now last topic of our chapter, that is types of material on the basis of conductivity, and they are categorized like in conductors and insulators. Before explaining this flowchart, let me tell you one thing. Wire is having plastic cover. If you remove the plastic cover, you can see the small shiny copper wires are there. For the any kind of connection, first we are going to remove the plastic case. Why so? Because if you directly just connect, आप एक ये काम भी कर लेना कि इतनी सर्किट बनाई है तो एक वायर को विदाउट उसका जो एंड है वो रिमूव करे बिना आप उसको सेल एंड बल्ब एंड स्विच के साथ अटैच करके देख लेना, क्या वो काम करता है? डेफिनेटली वो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज two types of materials are there. They are known as conductors and insulators. What are conductors? Conductors means the material which allow electric current to pass. Okay, so materials which allow electric current to pass is known as conductors. means जैसे कि वो कॉपर वायर है वो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास ऑन होने देगा. लेकिन एक कैसी कंडीशन है पता है कि अगर आप हेलमेट पहन के जाओ तो पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, लेकिन अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हो तो पुलिस आपको डेफिनेटली पकड़ेगी.
है ना. Okay, so conductors are the persons who wear helmet properly, okay, follow the traffic rules and they can easily pass through. But the insulators are the person who never wear helmet, or neither they have license or any paperwork of their vehicle, and due to that reason the police will going to resist them, they will stop them and ask for the fine. है ना, easy to understand. So conductors means the material which allow electric current to pass through, and insulator will not allow the electric current to pass through. Clear? Okay, now what are the examples of conductors? They are metals. कोई भी टाइप की मेटल, सोना हो, चांदी हो, मीन्स गोल्ड हो, देन सिल्वर हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, कोई भी टाइप की मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये समझना हो तो सिंपल, अगर बाई चांस गलती से भी अगर आपने गीले हाथों से अगर स्विच ऑन कर दिया तो थोड़ा सा झटका लगता है. ओके, सो दिस विल गोइंग टू प्रूव दैट आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा मीन्स यू आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और इसीलिए हम लोग वायर्स के ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग लगाते हैं. अगर प्लास्टिक का कवरिंग ना लगाया होता और सिंपल खुले कॉपर वायर्स होते, सो बाय चांस इवन सिंपल सर्किट कनेक्ट करते वक्त भी आपको एक छोटा सा करंट है वो लग सकता है, शॉक है वो लग सकता है. सो ह्यूमन बॉडी आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन इज वाटर. ओके, सो पानी भी, इसीलिए जब भी हाथ गीले होते हैं तब आपको शॉक लगने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कभी भी गीले हाथ से स्विच का यूज मत करो. व्हाई सो? बिकॉज water is a good conductor of electricity and which allow to pass through, so आपको शॉक लग सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रेफाइट. अब आपको लग रहा होगा कि ग्रेफाइट क्या है. सो ग्रेफाइट इज अ आपकी जो पेंसिल लीड होती है, वॉट एवर द पेंसिल लीड आर देयर, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, एंड दिस पेंसिल लीड इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अगर आपने एक छोटा सा डिवाइस इतना बना ही लिया है, सो यू कैन डू वन थिंग, छोटा सा टॉर्च बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल एंड पेंसिल. पेंसिल को आपको क्या करना है, पेंसिल का एक साइड आपको वाइंडिंग कर देना है, तो पेंसिल के लीड का दूसरा साइड है वो बल्ब के साथ अटैच करके फिर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल है वो पेंसिल का दूसरा है. ऑब्जर्व करना आपकी स्विच ऑन, आपका बल्ब है वो ऑन होता है कि नहीं. और दूसरी तरफ क्या करना है, पेंसिल को दोनों साइड से शार्पन करना है और उसको वायर के साथ अटैच करना है. एक वायर है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा और एक वायर है दूसरा, पेंसिल का दूसरा एंड है जो वायर के साथ अटैच है, उसको बल्ब के साथ अटैच करो और बल्ब का दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के साथ. दोनों चेक करना कि कौन से के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. एंड डू let me tell inside the comment section. Okay, अच्छा, insulator. Insulator means the material which do not allow electric current to pass through. Okay, so as I told you, the plastic covering on the wire act as an insulator, इसलिए आपको शॉक नहीं लगता है. Other are paper, rubber, wood, plastic. Okay, इसलिए हमेशा जो भी इलेक्ट्रिशियन कहीं पे भी काम करता हो, they always wear plastic और रबर शूज एंड ग्लव्स. वो हमेशा ऐसा ही होता है. ओके, अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट भी इवन रिपेयर करने के लिए आया हो या कोई भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कोई भी काम हो, तो वो पर्सन है वो हमेशा सेफ्टी मायने रखता है, वो हमेशा ऐसी चीजें पहनता है जो इंसुलेटेड हो ताकि उसको करंट ना लगे. ओके, इवन द स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू ड्राइवर हम लोग यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग आउट एनी इलेक्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज, सो वो भी हमेशा कैसे होता है, हैंडल उसका प्लास्टिक का होता है एंड उसका पॉइंटेड एंड होता है जिससे हम स्क्रू ओपन करते हैं वो हमेशा मेटल का होता है ताकि आपको शॉक ना लगे. सो ये चीज आप दिमाग में ध्यान रखना. ओके, नेवर यूज योर वेट हैंड्स फॉर स्विच ऑन और स्विच ऑफ एनी डिवाइसेस. ऑन दिस नोट the chapter is completed. Tomorrow I will give you the exercise explanation and
then after the PDF of the chapter. Okay, have a nice day. Bye.